Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we will start with the future tense. As you people have done past, present and past tense and further categories of all four categories of both these time slots, and you have done the practice paragraph relating to that particular tenses. Today we will start with the future tense, and we will like do it, give it a bit of speed, because as far as translation passages are concerned, the past paper that I have seen, there were very little paragraphs which were picked from the future tense. That is why we will do its formulas plus sentence structure with a bit of speed, so that we will wind up this question of translation in this week, and we will start with our textbook, right? And today we are going to start with the future tense. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. As you all of know, future tense is also further subcategorized into four sub tenses, that is future indefinite, right? You all of you know, because you people have done past and present as well, and the further categories of these tenses. That is why till now you are much familiar with these four further subcategories. First is future indefinite, second is future continuous, third is future perfect, and fourth is future perfect continuous. First we will start with the future indefinite, right? Let's see. A future indefinite tense is used to describe an action which will happen in future. It's so simple. This is something which is still going to happen, like it is still going to happen. It's not started yet, right? Any action which will happen in future, like it isn't started yet, there isn't any sense of completion in it yet. It is going to come in the time which is still pending, right? And we will see its formation. You have seen already all the formation of different tenses in both past and present, and it will have the same formula: subject, then helping verb, then verb, and then object, right? And you will definitely use helping verb here, shall and will. And in the negative tense you will use shall not and will not, and in the interrogative sentence you will bring shall and will in the start of the sentence, right? You know all. In the positive sentence you will only use shall and will and the first form of the verb and then object. In the negative sentence you use not, and in the interrogative sentences you bring helping verb in the start of the sentence. This is the very simple formula that you already know. Now let's see few of its tenses in Urdu, right? So that you will be having a clear cut idea which sentences those will be categorized into the future tense. Number one, the future indefinite is called fail mustaqbil matlak, right? Fail mustaqbil matlak, this is it is called in Urdu. इस टेंस के जुमलों के आखिर में गा, गी, गे आता है, और इस ज़माने में ऐसे कामों का बयान होता है जो आने वाले वक्त में किया जाएगा, अभी उस काम के बारे में ना वो शुरू हुआ है, कुछ पता नहीं, अभी उसने होना है, आने वाले वक्त में होना है, ठीक है? अंग्रेज़ी में इसके तर्जुमा करने का तरीका क्या है जी? अंग्रेज़ी में इसके तर्जुमा करने का तरीका ये है कि इस टेंस में आई और वुई के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो यू है, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, दे है, इट है, सिंगुलर है, ये ही और शी, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और
थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इन सब के साथ हम वर्ब की पहली ही फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। इन सब के साथ भी हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। अगर जुमलों में ज़रूरी लफ्ज़ या ख़याल आया हो तो आई और वी के साथ विल लगा देंगे और बाकी सब के साथ शैल लगा देंगे। इस बात की आपको समझ आई है? नहीं आई तो ज़रा दोबारा ध्यान दें कि रूटीन में जब जुमला होता है तो हमने देखा कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, जो रूटीन में, यानी किसी काम के ऊपर ज़ोर नहीं दिया गया, नहीं कहा गया कि वो काम ज़रूरी है यानी सिंपल है, तो फिर हम आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी काम के बारे में कहा गया है कि वो ज़रूरी काम है, वो उसने ज़रूर करना है, ठीक है, कि अगर आप सिंपली ये कहेंगे कि मैं कॉलेज जाऊंगी, आई शैल गो टू कॉलेज ना, ये आएगा कंस्ट्रक्शन में। लेकिन जब आप ये कहेंगी कि मैं ज़रूर कॉलेज जाऊंगी, तो फिर आप आई के साथ शैल यूज़ नहीं करेंगे, रादर यू विल यूज़ विल, आई विल गो टू कॉलेज। समझ आ गई अब इस बात की? अच्छा जी, मनफी जुमलों में नेगेटिव जुमले के साथ शैल और विल के बाद आप जो है नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और सवालिया जुमलों में विल और शैल को जुमले के शुरू में लगा देते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें सवाल भी पूछा जाए और नहीं भी लगाया जाए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो भी होगा WH फैक्टर से स्टार्ट होने वाला होगा, तो आप WH फैक्टर के बाद शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वो मुझे मिलने आएगा। ही विल कम टू सी मी, मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूँगा। आई शैल सी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं हर ख़तरे का सामना करूँगा। आई शैल सी एवरी डेंजर, वो सुबह सैर को जाएंगे। दे विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। वी शैल वेट फॉर यू, माली पौधों को पानी देगा। द गार्डनर विल वाटर द प्लांट। अब यहाँ पर देखें कि वाटर वैसे नाउन है, वाटर क्या है? किसी चीज़ का नाम है ना, तो नाम जो होता है वो नाउन होता है, लेकिन जहाँ पर वाटर जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो वर्ब की और दूसरी और तीसरी फॉर्म भी हो सकती है, यानी वाटर भी आ सकता है, वाटर्ड भी आ सकता है और वाटरिंग भी आ सकता है, ठीक है। चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करेगा। चाइना विल ऑलवेज़ हेल्प पाकिस्तान, वो ज़रूर जुर्माना अदा करेगा। ही शैल पे द फाइन, में ज़रूर, अब देखिए इसमें ज़रूर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वैसे ही के साथ आप विल इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन जहाँ पर चूँकि ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो उस विल की जगह आपने शैल का इस्तेमाल कर लिया। मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगी, वैसे आप आई के साथ शैल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि ज़रूर किसी काम के करने का बहुत पक्का इरादा किया गया है, तो इसलिए उसको शैल को विल से रिप्लेस कर दिया आपने। आगे ये बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, दिस चाइल्ड विल नॉट टेल अ लाई, ठीक है। ये हो गया जी आपका फ्यूचर indefinite. Now coming to the future continuous, it is used to describe an action which will be going on in the future, which will be going on in the future, going on। आपने present indefinite में क्या कहा कि which will happen in the future। for future continuous में क्या लफ्ज़ आया? which will be going on the future, जो कि कहीं आने वाले वक्त में शुरू होगा और फिर जारी रहेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट के? यू यूज़ हेल्पिंग वर्ब शैल एंड विल ओनली इन द इनडेफिनिट टेंस, बट व्हेन यू कम टू कॉन्टीन्यूअस टेंस, सो कॉन्टीन्यूअस में यू ऐड अ हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ बी। हियर द हेल्पिंग वर्ब विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, शैल, either shall or will, or and you will use be in according with it, and the first form of the verb and then the addition of ing and then object and then whatever the sentence, remaining parts of the sentence. I shall be playing football in the evening tomorrow, right? And in the negative sentences you are going to use you are going to add not, and where you will place not between the shall and be. I shall not be going, I shall not be playing football in the evening tomorrow, right? And in the interrogative sentence you bring helping verb in the start, and then you bring subject and then verb and then object and then remaining part of the sentence, right? The same formula that you apply on all the tenses. Now coming to its Urdu version, फेल मुस्तकबिल जारी है जी।
इस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी वगैरह के अल्फाज आते हैं। इसमें आइंदा आने वाले ज़माने में काम के जारी रहने का पता चलता है। समझ आ गया आपको कि आइंदा आने वाला काम होगा जो आइंदा आने वाले ज़माने में होगा और हो रहा होगा, वो जारी होगा। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने के इसके कुछ हम असूल देख लेते हैं। इस टेंस में वी और आई के साथ शेल का इस्तेमाल हम करते हैं, ये आपने पहले भी देखा है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। इंडेफिनिट में क्या था, वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म थी। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या था, वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है, पहली फॉर्म भी है और साथ में आईएनजी का इजाफा भी है और हेल्पिंग वर्ब में बी का भी इस्तेमाल आपने किया है। इसके अलावा यू, दे, शी, ही सब के साथ विल बी और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। मनफी जुमलों में आप शेल और विल के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद द बी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बच्चों, ये बात मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है तो फिर जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट और प्लस वर्ब इस्तेमाल होता है। ये फार्मूला कब लगता है, जब हेल्पिंग वर्ब एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है। जैसे ही डज़ नॉट गो टू कॉलेज, ही विल गो टू कॉलेज, शी विल प्ले इन द इवनिंग। इसमें क्या है, विल, डज़ और शैल जो हैं एक हेल्पिंग वर्ब है, इस वजह से नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में प्लेस किया गया है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है, जैसे शैल बी है या आप लगाते हैं विल बी लगाते हैं, हैज़ बीन लगाते हैं, हैड बीन लगाते हैं। तो इसमें ये सारे जो आपके अल्फाज हैं ये दो या दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब से मिलकर बनते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आप नॉट इस्तेमाल करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप, चूँकि यहाँ पर भी शैल बी एंड विल बी, शैल बी और विल बी दो वर्ड्स हैं जो कि एक हेल्पिंग वर्ब बना रहे हैं, तो इसलिए नॉट का जो इस्तेमाल होगा वो विल और बी के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, सवालिया जुमलों में इंट्रोगेटिव में शैल और विल जो हैं वो सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। और जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बच्चों, वो होते हैं जिसमें व्हाट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट शैल यू ईट इन डिनर, ये क्या है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, इसलिए कि इसमें आप शाम में क्या खाएंगे, सिंपल बताया गया है। लेकिन अगर आप ये इस जुमले को यूँ कर लें कि वाई शैल नॉट यू, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम वाई लगा दें, वाई शैल नॉट यू और आई विल गो टू मार्केट, कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा। अब इसमें नेगेटिव भी आ गया है और इंट्रोगेटिव भी आ गया, उन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है, तो इसलिए उसको आप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग नाउ। खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे, प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। माली पौधों को पानी दे रहा होगा, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे होंगे, बर्ड्स विल बी चिपिंग इन द ट्री। उस्ताद जमात को इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश टू द क्लास। वो मजाक नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी जोकिंग। तुम हंस नहीं रहे होगे, यू विल नॉट बी लाफिंग। डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा, द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। ऑपरेशन करना जो है वो सिर्फ उसमें ऑपरेशन करना जो है वो सिर्फ ऑपरेटिंग इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसके साथ हमेशा एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। बच्चों, ये अक्सर व बेशतर आपके करेक्शन ऑफ एरर्स में भी आता है कि मरीज़ का ऑपरेशन किया गया है।
तो उसमें ऑपरेटिंग जो है वो खाली इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ऑपरेटिंग अपॉन इस्तेमाल होता है। दिस इज़ द प्रेपोजिशन जो इसको कंप्लीट करती है, यानी ऑपरेशन करना जो है इस ये वर्ब जो है वो इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। नेक आदमी दूध में पानी नहीं मिला रहा होगा। द ऑनेस्ट मैन विल नॉट बी मिक्सिंग वाटर इन द मिल्क। क्या लड़का अपना सबक पढ़ रहा होगा। विल द बॉय बी रीडिंग हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क, राइट। नाउ कमिंग टू द future perfect. Future, as you people have already done the present perfect as well as the past perfect. In the present perfect you have seen the use of has and have, and in the past you have seen the use of had in almost all the subjects. In future definitely you are going to do the same with in accordance with will and shall. The future perfect sentences are those sentences in which action is completed by a certain future time. It means there is a time span is given in which a thing will be completed in the future, and in helping verb used here is shall and will plus have. And definitely you people till now know that the wherever have is used, you are going to use third form of the verb and then object. In the negative sentence definitely you will add not between the helping verb is will and have, and you will place helping verb over here. And in the interrogative sentence you will bring helping verb in the start, and then subject, and then verb, and then object, then question mark, right? It's so simple. फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल, इस टेंस के जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह के अल्फाज आते हैं, और मुस्तक़बिल में किसी काम के पूरा होने की उम्मीद होती है। इसमें दो काम का बयान होता है। एक काम जो पहले ख़त्म हुआ हो उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में ख़त्म होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तर्जुमा करते हैं। ये बात आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दूँगी, ठीक है। इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात ऐसे जुमले आते हैं जो एक जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उस हिस्से में एक में फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल होता है और एक में फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे माजी में मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात ऐसे जुमले होते हैं जो दो जो हिस्सों से मिलकर बनते हैं। एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट का होता है और दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट का होता है। बिल्कुल इसी तरह से फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल में एक हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट पर मुश्तमिल होता है जुमले का, जबकि दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट पर मुश्तमिल होता है। ये हम अभी इसकी एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह देखते हैं। अंग्रेज़ी में इसके जी तर्जुमा करने के तरीके क्या हैं? इसके भी वही तरीके हैं जो आप पहले देख चुके हैं कि इसमें विल हैव और शैल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल आएगा। मनफी जुमलों में नॉट जो है वो शैल और विल के बाद लगाएंगे। सवालिया जुमलों में शैल और विल जुमले के पहले में आ जाएगा, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड विल और शैल से पहले लगा दिया जाता है, ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। वो अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। दे विल हैव कम्प्लीटेड देयर वर्क, सूरज गरूब हो चुका होगा। द सन विल सेट इन, मेहमान आ चुके होंगे। गेस्ट विल हैव कम, उन्होंने नमाज़ पढ़ ली होगी। दे विल हैव ऑफर्ड द प्रेयर, डॉक्टर ने ज़ख्मी की मरहम पट्टी नहीं की होगी। द डॉक्टर विल नॉट हैव ड्रेस द इंजर्ड, उन्होंने ये गलती नहीं की होगी। दे विल नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक, वो अखबार नहीं पढ़ चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रेड द न्यूज़ पेपर, कोई मुसाफिर बस में सवार नहीं हुआ होगा। नो पैसेंजर विल हैव बोर्डेड द बस, क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे। विल ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन, क्या वो जुए में सब कुछ हार चुका होगा। विल ही हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन गैम्बलिंग, ठीक है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ तो आप स्लाइड को रोक के पॉज करके तो ऑब्वियसली ख़ुद से देख सकते हैं, बिकॉज़ ये चीज़ें सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर आते हैं जी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज़ द टेंस which will be in progress over a period of time that will end in future. Here, as you people have already done present perfect continuous and past perfect continuous, the speciality of this tense is that time is
must mention in these sentences. And what is the difference between the future perfect and continuous? In fact, this is the combination of perfect and continuous. You people already know it, कि you will use the perfect helping verb of perfect as well as the helping verb of continuous in it. The use of shall and will be done because of the future. Have, the helping verb has or have, will be done because of the perfect nature, and been will be done because of the continuous nature. A continuous nature and verb and the addition of ing, that is called fourth form of the verb, this will be done because of the continuous nature. And then you will use the use of since and for. We have already done कि why you use since and at which place you use since and at which place you use for. Anyhow, we will do it again. फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी कहते हैं जी इसको उर्दू में। इस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, हुआ होगा या हुई होगी वगैरह के अल्फाज आते हैं। इसमें काम करने का वक्त दिया जाता है। ये ज़रूरी बात है कि इसमें काम करने का वक्त दिया जाता है। इसमें आई और वी के साथ शैल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ज़ाहिर है इसका परफेक्ट भी इसके अंदर जुमले में परफेक्ट का नेचर भी आएगा और कॉन्टीन्यूअस का भी आएगा। इसके अलावा ही, शी, दे और दीगर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। मनफी जुमलों में, नेगेटिव सेंटेंसेस में विल और शैल के बाद नॉट आता है। सवालिया जुमलों में यानी इंट्रोगेटिव में विल और शैल को जुमले में पहले में ले आते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन वर्ड को विल और शैल से पहले लगाते हैं। और इन मुकर्ररा वक्त के लिए आप सिंस इस्तेमाल करते हैं और गैर मुकर्ररा वक्त के लिए आप फॉर लगाते हैं। इसको मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि जो जिसका एक सिरा आपको मालूम होता है, दूसरा सिरा मालूम नहीं होता, उसके लिए आप सिंस लगाते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आपके पास दोनों सिरे मौजूद होते हैं, उसके लिए आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 10 मिनट हैं, जैसे 1 साल है, 1 साल है, जैसे 10 दिन हैं। तो ये इसका मतलब है कि इसका शुरू और आखिर आपको मालूम है। सिंस में सुबह से शाम से, इसका एक सिरा आपको मालूम है, दूसरा सिरा मालूम नहीं है, इसलिए उसके लिए आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली सिंस सितंबर। बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। बशीर विल हैव बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 आवर्स। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज़ का मुआयना कर रहा होगा। द डॉक्टर विल हैव बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 मिनट्स। परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। बर्ड्स विल हैव बीन चिपिंग द मॉर्निंग। तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स विल हैव बीन सॉल्विंग द पेपर फॉर 3 आवर्स। लड़के सुबह से दरिया में तैर रहे होंगे। बॉयज़ विल हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेलते रहे होंगे। प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर। वो 7 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 7 o'clock। वो शाम से नहीं खेलते रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। बच्चा शाम से नहीं रोता रहा होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस इवनिंग। राइट गर्ल्स, दिस इज़ द एंड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टेंसेस वी हैव done in detail. Like on future tense I have spent less time because I have given you the reason that in final examinations there were very few paragraphs which were in future tense. That is why I have wind it up in one lecture. By tomorrow inshallah ta'ala we will do the practice of different paragraphs, and we will wind up this question of translation, so that we will start our next portion, the heroes or the hero that you call of our book, textbook. Right, hopefully you understood all these lectures, and hopefully you will be doing translation at your homes to be expert in it. Right, inshallah ta'ala I will take your test as soon as we will see one another in the college. Right.